Hello students, today we start triaxial and Burmester method. Both methods are designed the thickness of highway pavements. These methods are come under the semi-empirical method, and both methods are based on the modulus of elasticity. So let's start with the triaxial method. Triaxial method find the Young modulus by using the stress and strain curve. In this method, the soil sample is pressure under the lateral pressure of 160 kilonewton per meter square. If we find the thickness between two layers of pavement, so we use this formula to find the thickness under root 3pxy divided by 2 pi es delta per square minus a square es by ep 1 by third, where p क्या है, व्हील लोड, इनके x क्या है आपका ट्रैफिक कोफिशिएंट, y क्या है आपका यहाँ पे रेनफॉल कोफिशिएंट, ES modulus of elasticity of subgrade, EP is the modulus of elasticity of pavement, delta is the design deflection, A is the radius of contact area. So here ES or EP is the Young modulus between two interact layers. You can see here, this is the pavement and this one is the subgrade. Pavements mean मतलब एक total thickness layer आ गई, right? So that is the subgrade. जो भी ES होगा, ES modulus of elasticity of subgrade, तो जितना भी EP modulus of elasticity of pavement. If we find the thickness for single layer pavement, we use this formula. Here we remove this one part, so only this part used for single layer pavement, and this formula T1 by T2 equal to EP2 divided by EP1 bracket 1 by third. So this is used for the find the thickness of pavement if one pavement thickness is given and we find the another pavement thickness, right? So this formula is used in your competition exams where given is one pavement thickness and we find the another pavement thickness. यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स. Design a pavement section by triaxial method. Wheel load equal to 4000 kg. Traffic coefficient that is given 1.6. Contact area radius is given 15 centimeter. Rainfall coefficient is also given, that is the y equal to 0.7. Design deflection is 0.25 centimeter. And here given the pavement consists of 6 centimeter bitumen layer having modulus of elasticity 1200 kg per centimeter square, and modulus of elasticity of base course is 360 kg per centimeter square. Young modulus for the subgrade is 120 kg per centimeter square. So first you write all given data, and then after we put this formula we find the thickness. Here we find the thickness, that is the T base course thickness, because here Young modulus given for the subgrade and base course. So we easily find the T base course thickness for the base course. So by using this formula, we put all data here. 3 into 4000 is wheel load, 0.6 into 0.7, 2 pi ES हमने put कर दिया है
0.5 हमने पुट कर दिया है। जो डिफ्लेक्शन हमने प्रिंसिपल डिफ्लेक्शन यहाँ पे अलाउ किया था, राइट। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो 0.5 डिफ्लेक्शन है तो वो इतना अलाउड करते हैं हम, तो इतना आप पुट कर सकते हो। यदि नहीं किया उन्हें तो 0.5 डिफ्लेक्शन हमने यहाँ पुट किया। कॉन्टैक्ट एरिया रेडियस हमें पता 15 होता है, तो यदि नहीं किया उन्हें तो 15 पुट कर सकते हैं। ES हमें पता है 120 और EP हमें पता है, तो that will be fine. That is the T base course. We find the thickness here 48.3. Now we find the actual thickness for the sub base course, base course. So by using this formula with respect to T bitumens, we find the thickness for the base course. The thickness of the base course is 8.96 centimeter. If there was base course instead of 6 centimeter bitumen, यदि यहाँ पे बेस कोर्स होता, यदि कोई बिटुमिन नहीं होता और सीधा बेस कोर्स होता, तो दैट विल, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर हम पेमेंट बिटुमिन लेयर यूज नहीं कर रहे हो, तो सीधा हम टी बेस कोर्स यूज कर रहे होते, तो जो थिकनेस होगी, तो टी बेस कोर्स की थिकनेस 8.96 सेंटीमीटर और बढ़ जाती। बट एक्चुअली थिकनेस ऑफ बेस कोर्स हियर वी फाइंड इफ वी और 8.339 पूरा हमें जो देख रहे थे, तो उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा 8.936 और बिटुमिन लेयर के लिए। तो जो बिटुमिन लेयर थिकनेस, जो बेस कोर्स थिकनेस आएगी आपकी एक्चुअली, दैट विल बी द 39.34 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो टोटल थिकनेस ऑफ पेमेंट देखेंगे तो क्या आएगी, 39.34 प्लस 6 सेंटीमीटर आपकी क्या थी, तो गिवन थी बिटुमिन लेयर थिकनेस, तो दैट विल बी द 45.34 सेंटीमीटर। ओके, ये हमने इसलिए यूज किया क्योंकि मान लिया हम तो किसको भाई, सबग्रेड के ऊपर जो पेमेंट थिकनेस डिजाइन कर रहे हैं, तो जो पेमेंट थिकनेस जो सबग्रेड के ऊपर आई वो कितनी है हमारी 48.3, उसमें 6 सेंटीमीटर भी कवर है। पर हम उसके रिस्पेक्ट में हमारे यदि टी बेस की जो कोर्स थिकनेस आती, टी बेस कोर्स थिकनेस आती है हमारी, वो कितनी होगी 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्ट में, वो हमारी होगी 8.96, तो वो हमें माइनस करनी पड़ेगी उसमें से। तो हमारे जो एक्चुअली टी बेस आएगा दैट विल बी 39.34, तो टोटल निकालेंगे तो हम उसमें से प्लस करेंगे 6 सेंटीमीटर, तो हमारी आएगी 45.34 सेंटीमीटर। तो ये आपका न्यूमेरिकल था छोटा सा, न्यूमेरिकल आ सकता है, इस पे आएगा श्योर। आपका मैंने कराया था ग्रुप इंडेक्स मेथड, CBR मेथड, ग्रुप इंडेक्स मेथड और ट्राइएक्सियल मेथड। ट्राइएक्सियल मेथड इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आ सकता है 99% आ सकता है, तो इसको आप देखिए प्लीज। कोई और न्यूमेरिकल निकालिए आप, इजी है, फॉर्मूला याद कर लीजिए, राइट। Here we see next method is Burmester method. This method is based on the modulus of elasticity of different layer of pavement. Students, in this method we follow the layer theory. By layer theory, we find the stress on different layer of a ground by using the Westergaard theory or Bose-Kenneth theory. If we find the unit load we find the stress under the unit load, we using the Bose-Kenneth theory. आपने ये सभी सोयल मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, तो वही थ्योरी यहाँ पे एज पर लेयर थ्योरी यहाँ पे फॉलो होती है, राइट। और उसके एजम्पशन जैसे हमारा होमोजेनियस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। ये जो भी एजम्पशंस हैं सारे जो लेयर थ्योरी के, वही एजम्पशन यहाँ पे फॉलो होते हैं। यदि हम देखें तो जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, तो वो बिलो टू द ग्राउंड आपका रिड्यूस होता जाता है जैसे जैसे हमारी डेप्थनेस बढ़ती जाती है, तो वो आपकी स्ट्रेस डिक्रीज होती रहती है। यदि हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें, तो जो टॉप सरफेस होती है उस पे यंग मॉडुलस सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद ई बेस आता है, आप देख सकते हो यहाँ पे ई सरफेस पे सबसे ज्यादा होता है, ई बेस फिर उससे कम होता है, ई सब बेस उससे कम होता है, और सबसे कम होता है सब ग्रेड का, राइट। तो जैसे जैसे हम डाउनवर्ड मूव करते जाएंगे तो हमारा ई, हमारा जो यंग मॉडुलस है वो कम होता जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो यंग मॉडुलस रहेगा वो किस पे रहेगा, सरफेस पे, सरफेस कोर्स पे। तो here you can see by the Bosniak analysis
modulus, young modulus of subgrade over a payment that is equal to 1. This part is so Bosnich analysis, and this is the Burmester analysis. ES and divided by EP, that is equal to 1 by 10, and Poisson ratio is 0.5. तो Poisson ratio क्या लेके चलते हैं Burmester में? 0.5. You can see here, when stresses are acting over subgrade or payment, stress are reduced largely within payment layer. Okay, and next है at h equal to a, you can say यदि हमारी जो डेप्थ है वो a के इक्वल होगी, a क्या है यहाँ पे? कॉन्टेक्ट एरिया, उसका रेडियस। तो आपका यदि डेप्थ है वो a के इक्वल होगी, तो आपका जो ES बाई EP है दैट इज इक्वल टू 1 बाई 10, और आपका पॉइजन रेशो रहेगा 0.5। तो स्ट्रेसेज आर रिड्यूस्ड बाई 80 to 70%। इस डेप्थ में क्या हो जाता है, आपकी जो स्ट्रेस है वो आपकी रिड्यूस हो जाती है 80 to 70%। Now we see design method based on the ES by EP value and H by A ratio. Burmester introduced a term F2 known as deflection factor। F2 को बोला डिफ्लेक्शन फैक्टर। जो कंपैरिजन होगा बिटवीन HA एंड ESEP, यहाँ पे देख सकते हो आप ग्राफ को, HA this one and F2 this one, and this is the ES by EP, right? So here one new factor introduced by the Burmester, that is the F2. F2 is deflection factor. Other is displacement relationship by Burmester। उसने क्या बताया, 4 फ्लेक्सिबल प्लेट्स के लिए जो डिफ्लेक्शन होगा दैट इज इक्वल टू 1.5 PA इक्वल टू ES इंटू F2। P हो गया प्लेट लोड एंड आपका A हो गया कॉन्टेक्ट रेडियस, ES हो गया यंग मॉडुलस हो गया, F2 हो गया डिफ्लेक्शन फैक्टर हो गया। यदि रिजिड प्लेट टेस्ट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी दैट इज डेल्टा की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 1.18 PA डिवाइड बाई ES इंटू F2। Okay, so here we by using the single layer, if we use the first we single layer, so we consider the H equal to 0, thickness of payment is 0, so H by A factor is equal to 0। तो यहाँ पे जो ES by EP होगा that is equal to 1, और जो आपका F2 आएगा वो भी आपका 1 आएगा। ये आपका ये ES by EP that is given by the Bosnick analysis। So here F2 आपका हो जाएगा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। So we using this two plate test, delta is the 1 point P, यहाँ पे F2 को 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो हमारा केवल ये फॉर्मूला रह जाएगा। अब कहाँ पे हमें फ्लेक्सिबल प्लेट टेस्ट यूज करना है, कहाँ पे रिजिड प्लेट यूज करना है, तो इसके लिए हमें अभी बता दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे नोट में देखिए, when wheel load test is conducted over a payment, याद रखना जब हम wheel load test कंडक्ट करेंगे over a payment then flexible plate formula can be used। तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। here the test over payment modulus of elasticity of subgrade is still used, thus reduction factor is used is that F2 which depend on ES by EP। Next point is when plate load test is performed over payment layer, then rigid plate formula is used। जब हम प्लेट लोड टेस्ट परफॉर्म करेंगे पेमेंट के ऊपर तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, रिजिड प्लेट फॉर्मूला यूज करना है। और व्हील लोड टेस्ट परफॉर्म करेंगे पेमेंट के ऊपर तो हमें कौन सा यूज करना है, फ्लेक्सिबल प्लेट फॉर्मूला यूज करना है। ओके, तो आपको ये दोनों याद रखने हैं फॉर्मूले, और कहाँ पे क्या यूज करना है वो देखना है। जो HA और ES और EP, ES और EP बेसिकली आपका जो लेयर इंटरेक्शन है वहाँ पे हम ES और EP देख रहे हैं, राइट। लेयर ऑफ इंटरेक्शन का मतलब ये है आपका सब बेस और सब ग्रेड का इंटरेक्शन, सब बेस और सब बेस का इंटरेक्शन, ये आपका लेयर इंटरेक्शन। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, when plate bearing test is conducted with 30 cm dia plate,
on soil subgrade builded a pressure of 1 kg per centimeter square at 5 mm deflection. The test carried over 18 centimeter base course yield pressure of 5 kg per centimeter square at 5 mm deflection. Design the pavement section for a wheel load of 4100 kg with tire pressure of 6 kg centimeter square. Here we design the pavement section for a wheel load of 4100 kg with tire pressure 6 kg per centimeter square. Allowable deflection of 5 mm. Right. So first we conducted the when plate load test is conducted over subgrade. So here we using the deflection formula, that will be permissible deflection 0.5 centimeter. Considering the F2 that is equal to 1 और जो आपके ES और EP है that is equal to 1. So from here we find the modulus of elasticity for subgrade. We put these value in this formula. Here we find the modulus of elasticity for subgrade, that is equal to 35.4 kg per centimeter square. When plate load test is performed over base course, so here we find the F2 because already we find the ES. So we put the ES that is equal to 35.4. So now we find the F2. F2 that is equal to 0.2 और आपका H by A है. H by A की रिलेशनशिप क्या रहेगी आपकी 1.2. तो H क्या है यहाँ पे, मैं आपको बता चुका हूँ. H क्या है यहाँ पे पहले ही गिवन है. यहाँ पे थिकनेस जो कि है टेस्ट कैरिड ओवर 80 सेंटीमीटर बेस कोर्स के ऊपर जो थिकनेस गिवन है. बेस कोर्स की थिकनेस कितनी गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में 18 सेंटीमीटर. तो 18 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पुट किया. तो कॉन्टेक्ट रेडियस ऑलरेडी गिवन है 15. तो इसका रेशियो क्या आया 1.2. अब क्या करना है फ्रॉम द चार्ट, ये आपका चार्ट है, ये जर्नली मैंने आपको दिखा रखा है, ये आपका चार्ट है. तो थ्रो बाय यूजिंग दिस चार्ट बाय HA और F2 के कॉम्बिनेशन से हम ES और EP का रेशियो फाइंड आउट करेंगे. ES और EP का रेशियो फाइंड आउट करेंगे जिसकी वैल्यू क्या है हमने यहाँ पे देखते हैं. तो हियर F2 इक्वल टू 0.2 और H by A 1.2 है. तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू आएगी ES by EP की 1/100. तो यहाँ से हमारा ES गिवन है, ये तो हमारी पेमेंट की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मिल जाएगी, दैट इज इक्वल टू 3540 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर. व्हेन व्हील लोड टेस्ट इज कंडक्टेड ओवर बेस कोर्स, यदि हम व्हील लोड कंडक्ट कराते हैं बेस कोर्स पे, तो यहाँ पे हमारा जो यूजिंग द फ्लेक्सिबल प्लेट फॉर्मूला यूज करेंगे. तो इसके लिए F2 की वैल्यू आएगी by if we using the wheel load test. So here F2 value is 0.133, right? 133. देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने A पुट किया है, तो A की जो वैल्यू रहेगी कॉन्टेक्ट रेडियस आपका व्हील का कितना रहेगा, तो ये आपका व्हील लोड डिवाइड बाय टायर प्रेशर डिवाइड बाय 5. व्हील लोड आपका गिवन है यहाँ पे 4100, टायर प्रेशर 6 गिवन है 5, राइट. तो यहाँ से हमारा F2 आ गया, तो मैंने लिख पा रखा आप फॉर्मूला. तो यहाँ से F2 आएगा आपका 0.133. फ्रॉम द चार्ट गिवन फॉर F2 0.133 और ESP by EP 1/100, तो H by A का रेशियो आएगा 1.9. तो H की थिकनेस क्या आएगी आपकी, देखिए थिकनेस हम जो फाइंड आउट करेंगे वो हम व्हील लोड कंडक्ट करा के फाइंड आउट करेंगे. व्हील लोड कितना हो रहा है उसके बेस पे हमें पेमेंट की थिकनेस फाइंड आउट करनी है. तो जब भी हमें थिकनेस फाइंड आउट करनी होगी लेयर की, तो हमें व्हील लोड टेस्ट ही कराना पड़ेगा. तो और व्हील लोड टेस्ट फॉर्मूला प्लेट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. तो हेयर H by A 1.9 आ गया हमारा. तो H हमें यहाँ से निकल जाएगा, जो H की जो थिकनेस आई हमारी
थिकनेस ऑफ पेमेंट बेस कोर्स की वो कितनी आई 28.05। तो थिकनेस ऑफ पेमेंट सेक्शन हमारा कितना निकला यहाँ से 28.05। तो अबव द सीक्वेंस इन विच परमिस्टर इलास्टिक टेस्ट इज परफॉर्म, राइट। तो यहाँ से हमने थिकनेस फाइंड आउट कर ली पेमेंट की, जो कि हमें फाइंड आउट करनी थी। तो ऐसे हमें सीक्वेंस फॉलो करना है, हमें थिकनेस फाइंड आउट करनी होगी पेमेंट की बाय यूजिंग द परमिस्टर। तो बाय दिस क्वेश्चन में मैंने आपको सारा सीक्वेंस फॉलो करा दिया है। सबसे पहले हम सब ग्रेड की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालेंगे बाय कंसीडरिंग द एफ इक्वल टू 1 और ये सी पी इक्वल टू 1 ना, राइट। उसके बाद हम जो भी गिवन थिकनेस है उसके बेस पे हम क्या करेंगे, जितना भी उसके बेस पे हम जो अदर पेमेंट का जो भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, जो भी हमें नहीं पता है वो फाइंड आउट करेंगे। तो बाय यूजिंग द व्हील लोड टेस्ट वी यू फाइंड द थिकनेस ऑफ दैट पेमेंट। तो स्टूडेंट्स ऐसे आपको न्यूमेरिकल करने हैं। इस न्यूमेरिकल्स के काम जो चांसेस हैं वो कम है आपके एग्जाम में, क्योंकि इसमें चार्ट का यूज होता है और आपको चार्ट प्रोवाइड नहीं किया जाता, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई IS कोड भी मैं प्रोवाइड नहीं करूँगा, कोई भी यहाँ पे अथॉरिटी नहीं होती एग्जाम में। तो ये चार्ट का यूज, बिना चार्ट का यूज किए आप तो कर नहीं सकते। तो इसके लिए इसमें प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है कि ये आपका एग्जाम में कम आता है। वैसे ही पूछ लिया जाता है, इसका डेरिवेशन पूछ लेंगे आपको, ठीक है। पर जो ट्रायंगल मेथड है वो इम्पोर्टेंट है, उसका न्यूमेरिकल आपको 99% आ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय।